स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज factorization by splitting method, or we can also say that factorization by splitting the middle terms. We are discussing about what? Mathematics of class 9th, and here lesson number 2 is going on. Lesson number 2 is polynomial. This splitting the middle term method is specially apply for the quadratic polynomials. There are different types of polynomials: linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial. But splitting the middle term means splitting method is especially apply for the quadratic polynomial. You know what is the general form of the quadratic polynomial? The general form of a quadratic polynomial is ax plus bx plus c. There we have to split middle term. Splitting middle term method का नाम है we have to split the middle term, and middle term is b. Middle term is b. Even middle term is bx, but we will take the coefficient of middle term, so that's why b is a coefficient of middle term. And for this purpose what we have to do? First of all, we have to take the product of a and c. We have to take for this we have to take product of ac. Then what we have to try? Then we have to try for any two numbers whose product is equal to AC, but addition or subtraction according to the sign of C gives the equal to B. Now this is the factorization of splitting method. ये तो मेथड था जो कि लैंग्वेज के फॉर्म में मैंने आपको दे दिया है. मेथड को आप जरूर से लिख लीजिए. अब आप इस मेथड को समझिए. How we apply this method? Okay, you will get a quadratic polynomial in question, and that is always in the form of ax square plus bx plus c, and you have to factorize it. Earlier we discussed a method that is known as factor theorem, and now we are going to discuss that is known as factorization by splitting the middle term, or we can say that splitting method. Okay, अब इस मेथड में हम क्या करेंगे? ये जो नंबर b है, हमें इस नंबर b को स्प्लिट करना होता है. ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम a और c को अलग से लिख के और उनका प्रोडक्ट कर देते हैं, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ AC पता चल जाएगा. फिर प्रोडक्ट ऑफ AC के लिए क्या करते हैं वो सुनिए बहुत ध्यान से. प्रोडक्ट ऑफ AC को हम ब्रेक करते हैं ऐसे दो नंबर्स में. बहुत ध्यान से सुनिएगा. प्रोडक्ट ऑफ AC को हम ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे वही आए जितना AC है, लेकिन उन दोनों नंबर को प्लस करने पे या माइनस करने पे, ध्यान से सुनिएगा, प्लस करने पे या माइनस करने पे. अब ये प्लस और माइनस की बात कहाँ से आएगी? प्लस और माइनस हम समझेंगे सी के आगे जो साइन रहेगा उससे. यहाँ पे सी के आगे अगर साइन प्लस का रहेगा तो प्लस करने पे, और अगर सी के आगे साइन माइनस का रहेगा तो माइनस करने पे हमें क्या मिल जाए? बी मिल जाए. दिस इज योर मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अब मैं आपको जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में लिया था, सेम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक हियर, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ आंसर सेम आया, इसका मतलब कि
हम दोनों मेथड को फॉलो कर सकते हैं, दोनों मेथड से क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, आंसर भी सेम आएंगे। इसके बाद फिर अगर क्वेश्चन में बाउंडेशन डालता है कि बाय यूजिंग दिस मेथड, तो आपको फिर बाउंडेशन है, फिर तो आपको उसी मेथड से करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बाउंडेशन नहीं है, देन यू कैन चूज एनी मेथड, और बाय फैक्टर थ्योरम और बाय स्प्लिटिंग मेथड। बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके लिए अगर बाउंडेशन नहीं होती है तो आप स्प्लिटिंग मेथड को यूज करिएगा। एंड इवन मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि आप स्प्लिटिंग मेथड ही यूज करेंगे, क्योंकि आपको ये ज़्यादा इजी लगेगा। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि फैक्टराइज पॉलिनोमियल p ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय द स्प्लिटिंग मेथड। ओके, what is the general form of quadratic polynomial? General form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, and polynomial given x square minus 5x plus 6. Compare those both polynomials. Okay, here x square have a coefficient 1 and here x square has a coefficient a. It means a is equals to 1. Here x has a coefficient minus sign 5, but we don't concentrate on the sign in this method especially. Only for this method हम साइन पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ नंबर्स पे कंसंट्रेट करेंगे। द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट 5 and last is constant c and here constant 6 means c is equals to 6. According to the steps, first of all we have to do what? We multiply a c. We have to take the product of a c. 1 into 6, 1 into 6 is equals to 6. Now अब हम लोग 6 के फैक्टर्स करेंगे। 6 के देखिए एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि आप लिख दीजिए इसको 1 इंटू 6, तो ये 6 होगा। और दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि आप इसको लिख दीजिए 2 इंटू 3, तो भी ये कितना होगा 6 होगा। अब इन दोनों में से कोई एक आपके काम का है, दोनों आपके काम के नहीं हैं, कोई एक आपके काम का है। हमारा रूल क्या है कि हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा उसको हम ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे ऐसे पार्ट में कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 ही मिले, लेकिन यहाँ पे c के सामने साइन, मतलब 6 के सामने साइन कौन सा है प्लस का, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए प्लस करने पे b मिल जाए, b मतलब 5। तो यहाँ पे 1 इंटू 6 6 है, लेकिन 1 प्लस 6 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये हमारे काम का नहीं है। 2 इंटू 3 6 है और 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और b की वैल्यू कितनी है 5, तो इसलिए हमारे काम का 2 इंटू 3 है। तो हमने 6 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 3 एंड 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, नाउ आवर ब्रेकिंग इज कंप्लीट। नाउ प्रोसीड द क्वेश्चन। p of x is equals to x square minus, in the place of 5 we have to write what 2 plus 3. In the place of 5 we have to write 2 plus 3. 5 की प्लेस पे हमने 2 plus 3 लिखा, x plus 6. Now this is x square minus, multiply the x, 2x, this minus plus minus 3x plus 6. Now in first two and last two we have to take commons. In first two you can common x from both. From x square if you common x, remaining is x, minus from 2x if you common x, remaining is 2. Now सबसे आगे साइन माइनस का है तो माइनस कॉमन करेंगे। 3 और 6 में से क्या कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा। 3x में से 3 कॉमन तो x बच रहा है। फिर हमने क्योंकि माइनस कॉमन किया है दैट्स वाई ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। बहुत ध्यान रखना होता है इस चीज़ का, माइनस कॉमन किया है तो अंदर अगर यहाँ प्लस है तो वो कॉमन होकर के माइनस हो जाएगा, और 6 में से हमने 3 कॉमन किया तो वो हो जाएगा 2। नाउ लुक x माइनस 2 दो बार है रिपीट होकर के, तो x माइनस 2 हमारा अगेन कॉमन हो जाएगा और बचेगा x यहाँ से और यहाँ से -3, तो ये फैक्टराइज होके हो गया x माइनस 2 x माइनस 3।
आपको याद होना चाहिए कि जब हमने इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को फैक्टराइज किया था बाय फैक्टर थ्योरम, वी विल गेट द सेम आंसर. मीन्स वी कैन डू एनी मेथड, बोथ आर करेक्ट. एज योर convenient you can do the methods. Okay, now we will solve our next exercise. Our next exercise is exercise 2.4, but we have to solve this exercise in our next video, so wait for the next video.